नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। समाना मानसकार नागरिक मंच बीदर द्वारा पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली के घर पर की गई प्रेस मीट। कानून विभाग का कहना है कि कोटा परिवर्तन के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी है। जब कार्यकर्ता ने कांग्रेस सांसद को पहना दी बीजेपी की टोपी, देखिए नेताजी का क्या रहा रिएक्शन। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का 87 वर्ष की उम्र में। संसदीय दल में यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी जाएंगे। टीएमसी ने 48 घंटे में मारी पलटी। अब समाचार विस्तार से। समाना मानसकार नागरिक मंच बीदर द्वारा पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली के घर पर एक प्रेस मीट बुलाई गई। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, महेश गोरनालकर बनानसे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती कल 21 मई को शहर के चन्नबसवा पटदेवरू जिला थिएटर में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पोती और डॉक्टर अम्बेडकर की मां आयुष्मती रमा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए तेल तुंबड़े आएंगी। इस अवसर पर पंडित राव चिद्री, मारुति बौधे, प्रशांत भावीकट्टी, संजय जागीरदार और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ದಿನಾಂಕ 21/5/2025 ನಾಳೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 134ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದಂತ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವೀರಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಮುನಗೋಳಿ ಇವರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಥೇರೋ ಅವರು ವೈಶಾಲಿ ನಗರ ಆಂದೂರು ಇವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೋವಾದವರು ವಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ AICCಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರಾದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಭೀಮಸೇನ್ ರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪುಂಡ್ಲಿಕರಾವ್ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 14ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವರದಿಗಾರರಾದಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಂಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ವರದಿಗಾರರಾದಂತ ಹಾಜಿ ಪಾಷ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। रंग मंदिर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें एक दिलचस्प सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है कि बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसमें बाबा साहब अंबेडकर अवार्ड जिसको मिला है उनका सम्मान कर रहे हैं और उसके उद्घाटन के लिए बाबा साहब अंबेडकर की
परपोत्री ग्रैंड डॉटर उसमें आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बाबा साहब की जो पोत्री है रमाताई अंबेडकर बीदर को पहली मर्तबा आ रहे हैं और उनका आना हमारे लिए इस सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा रहा है। मैं तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम में आए और इसको कामयाब बनाएं। ದಿನಾಂಕ 21/5/2025 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತಲಿದೆ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು, ಘನತೆ, ಗೌರವ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೆ ಪುಂಡ್ಲಿಕರವರು ಮಾಜಿ MLC ಮತ್ತು ಸಮತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ಚಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮನನ್ ಶೆಡ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೆಲ್ತುಂಬಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ, ಒಂದು ಸೇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ, ಭಜನ್ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಹಳ್ಳಿಯಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೊಂಟ್ರ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೆಲ್ತುಂಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿದೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಓಣಿ ವಾರ್ಡ್ನವರು ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನವ್ರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿದೆ. ನಮ್ ಜೀವನದಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಿಂಬಳಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದ, ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಹಾಜಿ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಬಾಳೂರ್ನವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೈಚಾರಿಕ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಏನು ಮನುವಾದವನ್ನ ಇಡೀ ನಾಡಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ದೇಶದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೈಚಾರಿಕ ನಾಯಕ ಬಂದು ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಬಂಧುತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀರತೀಶಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರಕ್ತಪಟ್ಟ ಮನುಗಳಿಯವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದಳ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಬೆದ್ದಾಳ್ ಶರಣರು ಅವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋದೇನಂದ್ರು ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಾಸಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಪರ, ಗೊಂಡ ಪರ, ಬಸವ ಪರ ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಗೋರ್ನಾಳ್ಕರ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು RPI ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
कर्नाटक के विधि विभाग की राज्य सरकार ने कहा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की किसी भी कदम के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी। यह जानकारी हाल ही में मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई कानूनी राय से मिली। विधि विभाग ने कहा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में सरकार ने सहमति व्यक्त की है। वह न्यायालय की अनुमति के बिना आरक्षण के प्रतिशत या समुदायों की संरचना में कोई बदलाव नहीं करेगी। विभाग ने आगे कहा कि विभाग का मानना है कि इस तरह के निर्णय को अदालत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होती है। सांसद सुरेश कुमार शेट्टार, पूर्व मंत्री और इंचार्ज हैदराबाद के डॉक्टर ए चंद्रशेखर, जिला कलेक्टर वेलुर क्रांति मैडम, IAS, अतिरिक्त कलेक्टर, RDO, MRO और पुलिस विभाग की उपस्थिति में यह संभावना है कि चर्चा में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल है आयोजन स्थल की तैयारी और बुनियादी ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था, रसद और परिवहन कार्यक्रम का समय समय सुचारू और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अन्य आवश्यक विवरण। इन अधिकारियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा 23 मई 2025 को इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां एवं व्यवस्थाएं की जा रही है। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। बिहार के बेतिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेतिया पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर स्वागत करते समय कांग्रेस की महिला नेत्री सुधा मिश्रा ने गलती से सांसद को भारतीय जनता पार्टी BJP की कमल निशान पार्टी वाली टोपी पहना दी। कुछ ही पलों में यह भूल मंच पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर में आ गई और उन्होंने तुरंत टोपी हटाई। यह पूरी घटना किसी के कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार टोपी पर साफ तौर पर BJP का चुनाव चिन्ह कमल अंकित था। बताया जा रहा है कि सांसद मोहम्मद जावेद को शुरुआत में इस गलती का पता नहीं चला। घटना के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह घटना न सिर्फ मंच पर मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाली बात रही, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है। लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम में BJP की टोपी कैसे आई। अब अपने छोटे से ब्रेक पर जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का मंगलवार को पुणे में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उनके परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय विज्ञान जगत की जानी मानी हस्ती डॉक्टर नार्लिकर को व्यापक रूप से ब्रह्मांड विज्ञान में उनके अग्रणी योगदान, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके प्रयासों और देश में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए जाना जाता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार डॉक्टर नार्लिकर ने देर रात नींद में ही आखिरी सांस ली और मंगलवार सुबह अपनी आंख नहीं खुली। हाल ही में पुणे में अस्पताल में उनकी कूल्हे की सर्जरी हुई थी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए यूसुफ पठान को चुना था। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी का नाम सामने आ रहा है। वह सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। बता दें कि केंद्र ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को JDU के संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया था। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के रुख सामने रखने के लिए गठित केंद्र के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से खुद को अलग कर दिया। ये जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का संदेश देने के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में पठान को शामिल किया था। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि वह कूटनीतिक प्रयास का बहिष्कार नहीं कर रही, वह केवल यह चाहती है कि उसे अपना प्रतिनिधि चुनने की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सोनू बासी उर्फ भूरा को एनकाउंटर में मार गिराया। जानकारी के अनुसार गोंडा जिले के थाना उमरी
बेगमगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में सोनू पासी मारा गया। सोनू पासी के पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। सोनू पासी पर 53 आपराधिक मामले दर्ज है। घटना को लेकर पुलिस की ओर से बताया गया है कि इस मुठभेड़ की घटना से उसके दो साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सोनू पर हत्या, लूट, डकैती के दौरान हिंसा जैसे दर्जनों मुकदमे थे, जो पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। सोनू की तरफ से चलाई गोली एसएचओ नरेंद्र राय की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। अब एक छोटे से ब्रेक का चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अब 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह फैसला मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब 3 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 30,000 रुपए की अतिरिक्त दिल्ली सरकार देगी। यानी कि अब दिल्ली वालों को कुल 1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो अब तक की सबसे बड़ी प्रोत्साहन राशि मानी जा रही है। अब वही 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 10,000 की सीधी सब्सिडी मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों में पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में अब आपकी एकमात्र किन्नर पार्षद बॉबी ने भी आपसे अपना नाता तोड़ लिया है। बॉबी किन्नर सुल्तानपुरा माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43 सुल्तानपुरी ए से पार्षद हैं। बॉबी किन्नर ने आपसे नाराज 15 पार्षदों के समूह इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी 4P का दामन थाम लिया है। IVP का दामन थाम लिया है। पार्टी ने असंतुष्ट होकर लगातार आपके पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं और इसलिए राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन रहे हैं। इस घटनाक्रम में दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई है। बॉबी किन्नर ने कहा है कि हमें 2.5 साल हो गया सदन में, यह सदन ठीक से नहीं चलता, न हमारी बात सुनी जाती है, न हमारी बात रखी जाती है, न अफसर सुनता है हमारी बात। बताइए हम जनता में क्या मुंह अपना लेकर जाएंगे। अब वादा करके आए थे, हम जीते तो आपके लिए काम करेंगे, गली सीवर पार्क के सौंदर्यीकरण पर फोकस करेंगे। अभी तक हमें कोई बजट नहीं मिला, अगर बजट मिलेगा तो हम काम भी करेंगे। इन सभी चीजों को देखकर आज मैंने नई पार्टी ज्वाइन की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। समाना मानसकार नागरिक मंच बीदर द्वारा पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली के घर पर की गई प्रेस मीट। कानून विभाग का कहना है कि कोटा परिवर्तन के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी है। जब कार्यकर्ता ने कांग्रेस सांसद को पहना दी बीजेपी की टोपी, देखिए नेताजी का क्या रहा रिएक्शन। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का 87 वर्ष की उम्र में। संसदीय दल में यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी जाएंगे। टीएमसी ने 48 घंटे में मारी पलटी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।